right? So the thing is there, first of all, whenever we kept in mind for calling, the important aspect is there, how to look into with the things and what. First of all, whenever we make the call or we get the things done, so three things are important. First, what is the purpose of your call? Second, to whom you are calling, and third, how to close the call, right? So first, to whom we call, we should have some ideas in mind, or the perspective should be clear that we are calling into IELTS centers, school, colleges, universities, or anyone, right? So the way of calling to particular person will vary, because when we call to a school, that script will not work for the universities or colleges, and the same vice versa will be taken into consideration for others also. Like for example, मैं एक सपोज कर देता हूँ, आपने किसी एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट को कॉल की, और पैरेलली आपने नेक्स्ट कॉल की है किसी स्कूल को। तो सुखविंदर, आई थिंक जो आप एक एजेंट के साथ बात करोगे, एजुकेशन कंसल्टेंट के साथ, वो आप कभी भी बात नहीं कर पाओगे ना स्कूल के प्रिंसिपल के साथ, राइट? दोनों के साथ बात करने का Yes, sir. तरीका अलग होगा, राइट? आशना मैम, आई एम करेक्ट और रॉन्ग? यू फिगर मी आउट इफ आई एम समवेयर रॉन्ग। Yes. मैम आप ट्रेनर हो, गलतियां निकालने में आप एक्सपर्ट हो। ट्रेनर्स का काम तो करेक्ट करना नहीं। होता है ना। एनीवेज, सो हाँ, द सेकंड थिंग इज देयर, व्हेन यू आर टेकिंग अप द प्रोग्राम, यू शुड मेक श्योर कि जो आपका प्रोस्पेक्ट है, चाहे वो प्रिंसिपल है, चाहे वो एजुकेशन कंसल्टेंट है, चाहे वो यूनिवर्सिटी डीन है, या वो स्टूडेंट है, वो उसके लिए वाइबल हो, राइट? अब मैं अगर प्रोडक्ट्स की बात करूं, या मैं राइट वर्ड में बोलूं, प्रोडक्ट वाज अ राइट रॉन्ग वर्ड, द प्रोग्राम्स वी ऑफर्ड, राइट? तो जनरली सुखविंदर, हम किस में डील करते हैं? हम स्टडी इन ईयू कंट्रीज में करते हैं, स्टडी इन यूरोपियन यूनियन ओके। कंट्री। मेरे से कभी आप ये नहीं सुनोगे, या आशना मैम नहीं सुनेंगे कि मैं स्टडी इन यूरोप की बात करूंगा, राइट? यूरोप इज अ कॉन्टिनेंट followed by like more than 35 or 38 different countries which comes under EU, non-EU, Schengen, non-Schengen, right? So उसका मैं आपको ना glimpse दे रहा हूँ. I am just sharing my this like screen. So do let me know, is that my screen is shareable with all of you? Yeah, I think now the screen is shareable with all of you. Is it so? Yes. Okay. So now let me give you a in-depth thing. So let me first of all go to my website, right? So my website is, sorry. So So this is my YouTube channel. Let me come with my YouTube channel. So this will give you the insight how. So this is my one of the sister concern company, Best EdTech Solution. So they are about to join. So shall I wait or shall I start? So you can see here, like in Best EdTech, so I have 112 subscribers and 115 videos. You can see why I study in France, Spain presentation, scholarship, everything I have. So what will happen? You can take the reference note of this also, what you need to go through, how you have to go through, and there are different parameters. You can see every video of mine is authentic. And the information share over there is the first hand information. You can see here agents also get the training of different like things, right? So here it's there for different. This is the one perspective. So quickly let me go to my website. So this is my one of the website. So we are into higher education, which means a student from grade 12, bachelor's, master can study. So we are the information center for institution. When you counsel someone, so you need the information should be delivered over there, right? So all together. And if I talk about my services, so I'm into services also. I take care of the projects also, and I have my different clients all together. And it is very much important. You have to identify who is your I can say the what should I say, the client, because a client could be a student also, a client could be an agent also, a client could be a school, college, or universities also. But for me, universities, you can see here in my services, it is mentioned across the globe, universities, colleges associate with us for the admissions, for agent creation, marketing campaigns, and these other different things which they generally take into considerations, right? And quickly, I will coming into my training session. So you can see here people here come for me to schedule their, so they need to register themselves. So because it is a university, colleges, webinars are there, so I will cover the aspects different, so they need to get registered so that they can be listed on my YouTube channel, right? So now I am quickly going to my main website, so which is the parent one, right? So I'm coming on that only. So this is my main website.
So you can see here that is known as education group under best. So you can see here, first of all, my YouTube channel is there. So, and let me go under the services. So now I will be tell what best education group. First of all, we give a introductory consultation. We give a expert guidance, means trainings. As I'm making you sense clear that what to say, whom to say, what will be the script, for which purpose you will say, right? Same thing we also do. Second thing is the planning. We plan the thing for school, colleges, university because they are our partners, right? For as you for student, and the agent will be your partner, right? Now come the education management. This is very much important because you have to make a alliance. सो यहाँ पे मैं अलायंस का मतलब कह रहा हूँ कि अगर आपने एक बच्चे को कन्विंस किया है और वो आपको रेफरेंस दे रहा है तो उसके साथ आपकी अलायंस हो गई, या किसी एक एजेंट को आपने जोड़ा है बिजनेस के लिए, उसने आपको 2 जगह 5 केसेस दिए हैं तो उसके आपके साथ अलायंस हो गई, ये लॉन्ग टर्म के लिए, राइट, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। अब देन कम्स द ब्रांडिंग एंड पोजिशनिंग एनालिसिस, कि हम उसको ट्रेन कैसे कर रहे हैं, कौन सा मीडिया यूज कर रहे हैं, जैसे आई एम यूजिंग योर जूम और यूट्यूब, वट एवर आर देयर, राइट। Now comes the things what how well I will deliver. Process management, because what we manage admission. So when you are talking to an agent, you are processing their admission, streamlining their admission, because you are giving them the offer letter, you are helping them with the filing. आप उसकी filings में help करोगे, different different aspects में करोगे, उसको counseling करोगे, उसको support दोगे, उसको offer letter दोगे। So ये कुछ वो चीजें हैं जिनको करने के बाद आपको वो benefit देगा, right? अब आता है ट्रेनिंग का। सो बेस्ट एजुकेशन ग्रुप 2 तरीके की ट्रेनिंग देता है। एक देता है वो एजेंट ट्रेनिंग कोर्स, मेरे अलग अलग कोर्सेज हैं उसके। और फर्दर उसमें क्या है, एजेंट कोर्सेज के अंदर मेरे 2 कोर्सेज है क्या, या तो मैं प्रोफेशनल कोर्सेज दूंगा एजेंसी बेस्ड, या मैं डेस्टिनेशन का दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ जो कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं प्रोफेशनल कोर्स। उसमें क्या लिखा हुआ है, these training courses provide practical professional training for agency-based international student recruitment counselors, building knowledge of the industry, key destination, fundamental skills, and daily operation. These are the must to have an agency wishing to show their understanding of fundamental principle of international. जब आपने किसी को काउंसलिंग करनी है तो आपको पता होगा किस स्कूल की करनी है, किस कॉलेज की करनी है, किस यूनिवर्सिटी की करनी है, कौन से ग्राउंड्स में करनी है, राइट। सो दीज आर फ्यू ऑफ द पैरामीटर्स जिन पे आपको चीजों को देखना पड़ता है। अब मैं आपको थोड़ा सा अपने इंस्टीट्यूशनल पार्टनर का ग्लिम्स दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से हमारे पास हैं। जनरली आई हैव एन नंबर्स, बट जैसे मेजरली यू आर सीइंग फर्स्ट इज कनाडा, सेकंड इज हंगरी, राइट, साइड बाय साइड डाउन इट विल कम। नाउ कम द स्पेन ऑल्सो, मैड्रिड ऑल्सो देयर। सो मैं जितना ही मैं कनाडा में हूँ, मैं उतना ही यूरोप में हूँ और उतना ही हम यूएस में, बीइंग एज अ एजुकेशन ग्रुप, राइट। अब आती है अबाउट की बात, कि इसमें हम करते क्या, हाउ वी डिलीवर, या हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम उसको क्रिएटिव सॉल्यूशंस देते हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर आता है ग्लोबल एक्सपेंशन। ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं, पंजाब से बच्चा आएगा तो वो इंडिया इंडिया का हिस्सा है पंजाब, या अक्रॉस इंडिया से आ रहा है। अब हम उसकी कॉर्पोरेट वे में काम कर रहे हैं, उसकी कैंपेनिंग हो गई, उसको तरीका बताते हैं। ब्रांड रीडिजाइनिंग वो मैं करता हूँ कि किसी चीज को कैसे करना है, थीमेटिक करना है, कैसे क्या करना है। सो दीज आर ऑल द पैरामीटर्स, राइट। अब मैं आता हूँ हाउ आई कैन एबल टू हेल्प यू। लेट मी शेयर माई स्क्रीन वंस अगेन एंड ओके, I think the screen has been shared with you. आशना मैम स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों के साथ? Yes, sir. ओके, नाउ आई एम कमिंग स्टडी इन इटली, जो मैं सबसे पहला अपना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं अपनी सर्विसेज। तो इसमें क्या है, ये वो प्लानर है जिसमें 100% स्कॉलरशिप है। तो इसमें से इंडिया भी एक कंट्री है। यू कैन सी इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री इन द लिस्टेड, राइट। नाउ कम्स हु इज इन्वॉल्व, अगर ये फ्री स्टडी है या स्टडी इन इटली है, कैसे फ्री मिलेगा। सो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी, इटालियन ट्रेड एजेंसी, सब ने मिलकर ये प्रोग्राम बनाया है। और इसमें बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स के लिए जा सकता है इटालियन यूनिवर्सिटी से। और उसमें क्या है, उसने पढ़ना जरूरी है और उसको कंपलसरी इंटर्नशिप भी मिलेगी इटालियन कंपनी में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? Eligibility criteria is very simple. A student will go for a master's program, but he has to do his bachelor's degree in India, which should be 3 years or 4 years. And at the time of application, a student need to submit a pre-application for postgraduate. Any student fail to give a pre-application, it means अगर जब उसको ऑफर लेटर मिल चुका है किसी यूनिवर्सिटी से जो वो फ्री एजुकेशन लेना चाहता है या स्कॉलरशिप वाली लेना चाहता है, 100% स्कॉलरशिप, तो पैरेलली उसने आईवाईटी की स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करना है। दीज आर द टू एस्पेक्ट्स, कीप दैट थिंग इन माइंड ऑलवेज, राइट। एंड सबसे बड़ी बात है, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 1 कोर्स एट अ टाइम, राइट। एंड इफ अगर उसके पास नहीं है चॉइस, सेकेंड चॉइस तब डिस्प्ले होगी। अगर उसका फर्स्ट चॉइस
ओवरबुक्ड हो गई है, राइट? सो दिस इज देयर। नेक्स्ट कम्स हियर। ओके, एज, जो एज रिक्वायरमेंट है इट कुड बी लेस देन 25 ईयर्स, और आई कैन से अभी जो हमारे पास आ रहा है 2025 2026 का 1 जनवरी 1999 से नीचे होनी चाहिए उसकी एज, या उसके बाद का। और जो स्टूडेंट की जो लैंग्वेज एबिलिटी है वो मिनिमम B2 लेवल या अबव होनी चाहिए, और या तो वो बैचलर्स डिग्री वो सबमिट करेगा सर्टिफिकेट जिसमें स्टेटिंग द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश इज मैंडेटरी, राइट? ये, लेट मी कम ऑन द स्टेप्स। अब जो IYT का पोर्टल खुलेगा वो जनवरी फरवरी में खुलेगा, बट वी हैव टू वर्क ऑन नवंबर बिकॉज हमें यूनिवर्सिटीज के भी पैरेलल काम करना है। तो सबसे पहले जनवरी फरवरी में जब होगा तो हम वो प्लेटफॉर्म में काम करेंगे, और उससे पहले यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मार्च में यूनिवर्सिटी ये एडमिशन क्लोज हो जाते हैं। मार्च से जून देयर विल बी अ इवैल्यूएशन ऑफ द एप्लीकेशंस, राइट? एंड उसके बाद जून और जुलाई में इवैल्यूएशन की रिपोर्ट आ जाती है। फॉर देयर आफ्टर वी अप्लाई इन द एम्बेसी ऑफ इटली, चाहे वो नॉर्थ में हो या कॉन्सुलेट जनरल साउथ में, राइट? Let me come ahead. Now comes here. So you see, then we apply in the August for the visa application, and then जुलाई में जब हम अप्लाई करते हैं तो अगस्त के एंड तक हमें आ जाता है। सितंबर मिड में हम फ्लाई करते हैं, then they apply for the residence permit like this. So this is all process. Now comes the documentation. Documentation means we need a transcript. We don't need only degree or like passing certificate. We need the final year transcripts. अगर बच्चे का फाइनल ईयर का ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, सो वो क्या कर सकता है, वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे यूनिवर्सिटी से सर्टिफाई करा सकता है कि उसकी बैचलर्स कंप्लीट हो गई है, बट उसका डिप्लोमा या डिग्री इशू करने में अभी टाइम लगेगा। सो दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द एकेडमिक रजिस्ट्रार ऑफिस। नाउ कम, इंग्लिश का मैंने ऑलरेडी बता दिया, इटालियन लैंग्वेज इज नॉट मैंडेटरी सर्टिफिकेट। अब वीडियो, यू कैन सी हियर वीडियो इन विच द कैंडिडेट एक्सप्लेन देयर मोटिवेशन नो लॉन्गर देन वन मिनट एंड 10 MB। सो ये बड़ा ही क्लासिफाइड होना चाहिए। CV या रेज्यूम वो भी बनेगा, और वैलिड पासपोर्ट। ये बेसिक बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जी। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है इंग्लिश में, तो या तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड हो, फ्रेंच में या स्पेनिश में। और एक चीज ध्यान रखना है, हम एक मेल से एक ही बार यूज कर सकते हैं, हम उसका मल्टीपल टाइम यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा है मल्टीपल एप्लीकेशन बाय यूजिंग डिफरेंट ईमेल एड्रेस आर नॉट अलाउड, जो मैंने पहले ही बोल दिया था स्टार्टिंग में, राइट? सो आई थिंक इससे ये क्लियर हुआ होगा कि हाउ द थिंग्स, इटली का जो 100% स्कॉलरशिप है, या कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, इंडिया इन्वॉल्व है कि नहीं, ये सारी चीजें ऑल टुगेदर मैंने आपको क्लियर की हैं, राइट? अभी कोई वैसे जनरल क्वेश्चन हो, अदरवाइज आई विल मूव ऑन टू नेक्स्ट सोल्यूशन एस्पेक्ट। सो सुखविंदर, ये बेसिक क्लियर है कि क्या क्या होता है, बेसिक चीजें? हेलो सुखविंदर, इज माय वॉइस इज ऑडिबल? Yes, sir. सो आपको कुछ समझ आया कि बैचलर्स चाहिए हमें, हमने कैसे प्रोसेस करना है, पहले यूनिवर्सिटी करेंगे या कैसे करेंगे, ये आपको कुछ समझ आया 100% स्कॉलरशिप का? हाँ जी सर। ओके, अगर कोई बैचलर स्टूडेंट है तो उसकी मिनिमम एज कितनी चाहिए होगी सुखविंदर, उसको अप्लाई करने के लिए कितनी चाहिए होगी? So one वन? wait, sir. Ashna ma'am, did you get what is the minimum age criteria threshold to apply? सर एक्चुअली So आई 99. यस, तो एक बार गो थ्रू हो जाएगी ना। नहीं, आपको पता लगा विच इज द लीस्ट एज, किस एज ग्रुप का चाहिए हमें बच्चा? सर 1990 से नीचे चाहिए सर। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, दिस इज द थिंग, बिकॉज 25 से लेस। यस 1999 के जनवरी के बाद का बॉर्न हो, एग्जैक्टली। हाँ एंड ये जी भी सर। देख लिया कि यस। कैसे होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का है तो इसका प्रोसीजर भी अलग है। जनवरी हाँ फरवरी जी। में पोर्टल खुलता है, बट नवंबर में हमें काम करना पड़ता है, जो 3 दिन बाद से 2 नवंबर से। क्योंकि क्या होगा सुखविंदर, जब आप एप्लीकेशन यस। उठाओगे, बच्चा एलिजिबल होगा, जो हमें ऑफर लेटर लेना है ना गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, यस एक महीना लग जाता है उसके लिए, 1 महीना लग जाता है, राइट? और 15 दिसंबर के बाद एम्बेसीज या जो भी स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज होते हैं फॉरेन में, वो छुट्टियों पे चले जाते हैं, यस। क्रिसमस ईव पे चले जाते हैं, राइट? 15 तारीख के बाद। और ओके। वो जब ज्वाइन करते हैं तो पहला हफ्ता जा चुका होता है, अपना फर्स्ट वीक ऑफ फर्स्ट न्यू ईयर जा चुका होता है, तो हमें उसके हिसाब से काम करना ओके पड़ता सर। है, राइट? एंड ठीक है नाउ सर। आई विल कम टू द डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जनरली जो करता हूँ। आई विल लेट मी कम ओवर देयर, लेट मी, आई थिंक ओके सर। स्क्रीन इज बिंग शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू, राइट? स्क्रीन मैम शेयर हो गई आप लोगों से? हाँ जी सर। ओके मैम। अब मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेट मी शेयर हियर, या आई एम शेयरिंग 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 शेयरिंग, लेट मी सी। ओके,
Study in. Okay. Right. सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एग्जांपल से साथ चलता हूँ, एजुकेशन इन स्पेन। सो स्पेन एक शेंगन कंट्री है और मैं इसमें यूनिवर्सिटी में डील करता हूँ। सो यू कैन सी हियर, आयल्स मुझे नहीं चाहिए बट आयल्स के इक्वलेंसी मुझे चाहिए, दैट इज 5.5 बैंड की। अब जो मिनिमम ट्यूशन डिपॉजिट है, मान के चलते हैं हमारी फीस $12,000 है या $15,000, तो मिनिमम जो मुझे चाहिए 10% डिपॉजिट चाहिए। अगर मेरी 12,000 या 12,500 फीस है तो उसका 10% 1250 बन जाता है ऑल टुगेदर। उसके बाद स्टूडेंट विद द एज ऑफ 35 भी अप्लाई कर सकता है। मिनिमम जो भी चाहिए मुझे +2 उसके अबव चाहिए। इनटेक मेरे पास दो हैं, इंग्लिश में होगा। अफोर्डेबल पढ़ाई कहने का मतलब पहले वो सिर्फ 10% दे रहा है। स्कॉलरशिप डिपेंड करती है स्टूडेंट के प्रोफाइल पे। मल्टीपल मेरे कैंपसेस हैं, 7 कैंपसेस हैं यूनिवर्सिटी के। पेड इंटर्नशिप मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, वो प्रोग्राम पर है। अब यूरोपियन यूनियन यहाँ पे वर्ड लिखा है, यूरोपियन यूनियन में मोर देन 30 कंट्रीज आती हैं, बट शेनेगन में अप टू 29 कंट्रीज आती हैं। यूरो उनकी कॉमन करेंसी है। रिफ्यूजल चाहे किसी भी कंट्री का हो, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एक्सेप्टेबल है। वीजा की सक्सेस हाई है क्योंकि इंटरव्यू होगा। और यहाँ पे जो पार्ट टाइम वर्क है वो 24 घंटे से ज्यादा का है। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक हुई है, पीडीएफ में 24 नहीं है, 30 आवर्स है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा नहीं है, जो लेस देन 600 यूरोज है। अम्बेसी का इंटरव्यू होना मैंडेटरी है। यूरोपियन लाइफस्टाइल है। अपोस्टल एक ऑथेंटिकेशन डॉक्यूमेंट होता है जो मैंडेटरी है पूरे यूरोप में या शेनेगन में। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ उसकी पढ़ाई, चाहे वो 2 साल की मास्टर है, चाहे वो 4 साल की डिग्री है, उनको 1 साल का वर्क परमिट की तरह जॉब सर्च वीजा मिलेगा, राइट। अब स्टूडेंट पूछता है कि मुझे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो उसको जो डॉक्यूमेंट चाहिए, पासपोर्ट चाहिए उसका वैलिड, 10th 12th के मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एकेडमिक गैप अगर है वो जस्टिफाई कर दो, और एप्लीकेशन फीस 250 350 डिपेंडिंग ऑन प्रोग्राम या यूनिवर्सिटी पे वो चीज़ें इंक्लूड। अगर वर्क एक्सपीरियंस है वो भी शो करना पड़ेगा, ये चीज़ें। और कई बार ये भी होता है कि उसको अगर ऑफर लेटर लेना है तो इंटरनेशनल टीम के साथ उसको इंटरव्यू भी आ सकती है। और यूनिवर्सिटी का जो नाम है दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोपिया, मैड्रिड कैंपस में है। अब जो क्राइटेरिया है, +2 अगर पास बच्चा है तो 55% या अबव होना चाहिए, और मिनिमम 60% इंग्लिश में चाहिए। और उसके जो मोटिवेशन लेटर हैं या LOR हैं वो मस्ट है। और अगर मास्टर्स की है तो बैचलर्स चाहिए 3 या 4 साल की, और मिनिमम 55% या उससे अबव चाहिए ये। और सबसे बड़ी बात है, जो वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसीजर है उसके लिए हमें 3 से 4 महीने पहले अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म वीज़ा है। और हमें उसके लिए अप्लाई भी करना पड़ता है 1.5 महीने पहले अपॉइंटमेंट्स के लिए। तो अगर हमारे हाथ में 4 महीने हैं और 1.5 महीने पहले हमने उसकी एम्बेसी इंटरव्यू के लिए या VFS अपॉइंटमेंट्स के लिए किया है, तो हमारा इजीली फाइल सबमिट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है जो हमने कवर किया है ऑल टुगेदर। और इसके बाद अब आता है नेक्स्ट कंट्री, लातविया। तो कुछ कॉमन चीजें मैं बता देता हूँ जो पूरे शेनगन में होती है। शेनगन या किसी में कॉमन क्या होगा कि जो कम से कम है कि विदाउट आयल्स है। मेजोरिटी जितनी भी कंट्रीज होंगी वो विदाउट आयल्स होंगी। या उसमें क्या कहते हैं, जो स्ट्रक्चर है, PCC कॉमन होगा, मेडिकल कॉमन होगा। हाँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी बढ़ सकती है, कम हो सकती है, कहीं थोड़ी ज्यादा होगी। हाँ, इनटेक ऑलमोस्ट सेम है, सबके इनटेक 2 होते हैं, बहुत कम है कि जहाँ की 3 या 4 मिलेंगे, ये चीजें। और सब में इंटरव्यू आना कॉमन बात है। अब जैसे मैं लातविया की बात कहूँ, पहले में भी फर्क जो पड़ा है वो फीस का पड़ा है। वहां 10,000 से ज्यादा थी, यहाँ 5,000 है। और सबसे बड़ी बात है कि हर एक का एक तरीका अलग है। उनका जो वीजा प्रोसेसिंग है किसी का मिलता नहीं है, किसी का क्या कहते हैं अलग अलग तरीके का। किसी में रिकॉग्निशन चाहिए, किसी के नहीं चाहिए। किसी में 2 महीने में रिजल्ट आ जाता है, किसी का 3 महीने बाद आता है, डिपेंड करता है ऑल टुगेदर। और फीसेस का फर्क होगा, फीसेस का फर्क होगा, इमिग्रेशन प्रोसीजर का फर्क होगा। 2-3 चीजें मेजर होंगी। और हाँ, सबसे बड़ी बात है लिविंग कॉस्ट की। अगर मैं अब बात करूं इसकी क्या कहते हैं स्पेन की, तो वहां पे 560 यूरोज चाहिए, जो नियरली 600 यूरो बन जाता है। अगर मैं वही लातविया की बात करूं तो लातविया में हार्डली 450 यूरोज चाहिए। सो दैट इज लेस देन 500 यूरोज, बट मैं पूरे साल का उसका 6,000 यूरो लेकर चलता हूँ या 5,000 यूरो लेकर चलता हूँ। 5,000 यूरो एक साल की फीस हो गई, 5,000 उसका लिविंग कॉस्ट। तो वो जितने में उनकी स्पेन की यूनिवर्सिटी की फीस बड़ी मुश्किल से हुई है, उतने में तो बच्चा एक साल में रह रहा है और वहां पे फर्दर वो अपना लिविंग कॉस्ट और पढ़ाई कर रहा है।
सबसे बड़ी बात लातविया की ये है कि वहां पे मेरे पास 6+6 है, 6 महीने पढ़ाई 6 महीने काम। सो जिसकी वजह से स्टूडेंट को पहला सेमेस्टर पढ़ाई कर कर सेकेंड सेमेस्टर में फुल टाइम वो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है फुल टाइम, और वो हॉस्पिटैलिटी वगैरह में काम करके 4 स्टार होटल में काम करके अपना लिविंग एक्सपेंस निकाल सकता है। और जो वहाँ का लिविंग एक्सपेंस है इट इज़ मिनिमम डिपेंडिंग ऑन एम्प्लॉयर, बट जनरली हम जो लेते हैं 700 750 यूरो जनरली लेते हैं, जनरली हम एज्यूम करते हैं, बाकी डिपेंड करता है एम्प्लॉयर पर, क्योंकि उसमें उसको फूड एंड एकोमोडेशन दोनों चीज़ें प्रोवाइडेड होती हैं, राइट। और क्योंकि सबकी एम्बेसी फीसेस ऑलमोस्ट कॉमन है, एप्लीकेशन फीस भी ऑलमोस्ट नियर समवेयर वो कॉमन है, ये चीज़ें हैं। हाँ, ऑफर लेटर में टाइमिंग में फ़र्क लग सकता है, कई बार होता है कि कॉलेज का ऑफर लेटर लेट आता है, यूनिवर्सिटी का जल्दी आ जाता है, और कई बार कॉलेज का जल्दी आ जाता है, यूनिवर्सिटी का लेट आता है, वो कंट्री टू कंट्री वेरी करती है ऑल टुगेदर। इट्स ये नहीं है कि हाँ जी सर लातविया में 15 दिन लग गए और हमारा स्पेन में 10 दिन में आ गया, या ग्रीस में 5 दिन में आ गया, साइप्रस में 24 से 48 घंटे में आ गया, वो डिपेंड करता है हर चीज़ों का, राइट, ऑल टुगेदर। बाकी अगर चीज़ें बोलूँ, यहाँ पर मेरे पास जैसे 3 इंस्टीट्यूट हैं, रीगा होटल स्कूल आ गया, बाल्टिक इंटरनेशनल एकेडमी आ गई, इज्मा यूनिवर्सिटी आ गई। तो चीज़ें क्या है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा एडमिशन में करने में, बट अगर मैं कहूँ कि स्कूल्स कॉलेज का कॉलेज से, तो वो सबका सेम रहता है ऑल टुगेदर। और फीसेस कई बार ये होती है, यूरोप में जो देखा जाता है जनरली क्या होता है कुछ जगहों पे, कि कॉलेज की फ़ीस कम होती है, सॉरी कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा होती है, यूनिवर्सिटी की कम होती है। जैसे लातविया में कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा है, यूनिवर्सिटी की कम है ऑल टुगेदर। अगर मैं इस्मा यूनिवर्सिटी या बाल्टिक इंटरनेशनल एकेडमी की बात करूं, इनकी फीसेस बहुत कम है एज कम्पेयर टू रीगा होटल। रीगा होटल की 5,000 है तो उनकी 4,000 4200 4500 होगी। सो दैट इज मैटर बहुत करता है ऑल टुगेदर चीज़ों को देखने के लिए, ये राइट। अब मैं आता हूँ साइप्रस पे, जो हॉट सेलिंग केक ही कह लूंगा, मार्केट में हर कोई कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात है, अगर साइप्रस, मैं पहले बता दूंगा, कोई शेंगन कंट्री नहीं है, यूरोपियन यूनियन की कंट्री है। 5 बैंड मिनिमम चाहिए, एंड ट्यूशन फी आफ्टर वीज़ा है, उसके 4 इंटेक हैं, जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर। मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 चाहिए, गैप जितना भी हो 5 साल 10 साल एक्सेप्टेबल है, रिफ्यूज़ल किसी की भी कंट्री की एक्सेप्टेबल है ऑल टुगेदर। एंड जो ट्यूशन फीस स्टार्ट होती है 4,000 4500 से, एक स्टैंडर्ड फीस मैंने ली है। और अगर बच्चे के मिनिमम 50-55% है हम तो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और जो वहाँ की रिक्वायरमेंट है वो 7,000 यूरो की है, मैंने 1,000 यूरो ज़्यादा बढ़ाकर लिखाया हुआ है। तो यूरोपियन यूनियन की कंट्री है बट शेनेगन नहीं है। लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, 250 यूरो से बच्चा वहाँ रह सकता है। अगर कोई बच्चा 3,000 यूरो लेकर जा रहा है तो उसके 10 महीने का वो लिविंग कॉस्ट है ऑल टुगेदर, राइट। ये अगर 4500 में मैं 3,000 जोड़ूं तो 7,500 बन जाता, तो 8,000 नियर अबाउट वहाँ पे मैंने लिखा है। और लो कॉस्ट ऑफ, जहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है वहाँ पे होटल मैनेजमेंट, कलनरी स्किल, बिजनेस, कंप्यूटर, आईटी। वहाँ पे आमतौर पे जो मार्केट में चल रहा है वो लोग फाउंडेशन प्रोग्राम में भेज रहे हैं 1 साल की इंग्लिश पढ़ाने पे, बट जो मैं प्रोग्राम दूंगा 5 बैंड के साथ वो 1 साल या 2 साल का दूंगा मैक्सिमम। और उसमें बच्चे को 5 बैंड चाहिए और डिप्लोमा में उसके एडमिशन होगी, बट डिप्लोमा के लिए कॉलेजेस बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। और वहाँ पे जो उसको टीआरसी मिलती है वो 90 बिजनेस डेज में मिलती है, टेम्प्रोरी रेजिडेंट परमिट या रेजिडेंट परमिट, जिसके बिहाफ पे वो काम कर सकता है फुल टाइम 20 आवर्स पार्ट टाइम। और एप्लीकेशन फीस जो यहाँ पर है, अगर मेरे कॉलेज में है या यूनिवर्सिटी में है, दैट इज 250 यूरो से अबव की होगी, यहाँ पे मैंने टेंटेटिव लिखा हुआ है। और जो बच्चा वहाँ पे इनकम कमाता है वो 350 से 450 से यूरो ज़्यादा नहीं कमा पाता। हाँ, वीज़ा अनडाउटेडली वेरी हाई है क्योंकि यहाँ पे पेमेंट आफ्टर वीज़ा है और कॉलेज ही प्रोसेस करता है। 20 आवर्स पार्ट टाइम वर्क अलाउड है। पिंक स्लिप के बिना काम करना इलीगल है, बट बच्चे पहले सेमेस्टर करते हैं, ये ट्रुथ है। अब जो बच्चा वहाँ पैसे दे रहा है उसमें 1 साल की उसकी ट्यूशन फीस इंक्लूड है, एप्लीकेशन फीस इंक्लूड है, एयरपोर्ट पिकअप इंक्लूड नहीं है, अगर वो हमसे मांगता है हम उसको दे देंगे। ऑफर लेटर पिछली तरह ही है, वो सेम है कि 10th 12th चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, ये है। और हम बच्चे को ये गाइडेंस दे रहे हैं कि जो भी कोर्स देंगे, जो भी इंस्टीट्यूशन देंगे, उसकी लास्ट पढ़ाई के हिसाब से देंगे, ये चीज़ें। और अब आता है कि हमारे पास कौन से इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे, राइट। सो अलेक्जेंडर कॉलेज नहीं है हमारे पास, अमेरिकन कॉलेज है, सीडीए कॉलेज है, इंटरनपा है, कैस है, यूनिवर्सिटी ऑफ निकोशिया, लेड्रा कॉलेज, सीआईएम साइप्रस बिजनेस स्कूल, लारनाका कॉलेज है, कासा कॉलेज है, सीटीएल यूरो यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस है। अब सिंस साइप्रस मेंबर था सन 2004 से, तो ऑलमोस्ट ये 20 साल हो चुके हैं। अब उसकी बातचीत चल रही है कि वो शेंगन में आ सकता है 2025-26 में। हो सकता है वो नेक्स्ट ईयर इस टाइम में शेंगन हो या शेंगन आ चुका हो। तो अभी तक हम जितना हार्ड एंड शिप कर लेंगे तो वो हमारे लिए बेटर होगा। अभी वीज़ा भी ऑलमोस्ट 100% है और इसमें कोई रिस्क भी नहीं है। अगर हम रिस्क कहें तो कोई रिस्क नहीं है। आमतौर पे क्या होता है, किसी की इंटरव्यू है, किसी का कुछ है, ये करना है, वो करना है, इट इज़ नॉट लाइक दैट ऑल टुगेदर। एंड साइप्रस हर कोई कर रहा है, हर टॉम डिक हैरी कर रहा है, ये चीज़ें।
क्योंकि सबसे इजी प्रोडक्ट ये है कि अगर किसी को विदाउट आइल्स जाना है, ट्यूशन फीस आफ्टर वीज़ा जाना है, और उसको कोई ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना, विदाउट इंटरव्यू करना है, सो इससे बेस्ट प्रोडक्ट। और रिफ्यूज़ल भी लगी हुई है, और पैसे भी कम है उसके पास। वो कहता है मेरे पास सिर्फ 10 लाख रुपए हैं या 8 लाख रुपए हैं, तो हम उसको 5,000 यूरो या 5500 यूरो में भेज सकते हैं। मतलब आप कैलकुलेट करो 5,500 यूरो को इंटू 95। आशना मैम आप जरा कैलकुलेट करना, 5,500 यूरो को 95 से मल्टीप्लाई करना, हाउ मच इट कम्स ऑल टोटलिटी, हाउ मच इट कम्स। मतलब 495। मैम 495 क्या, नहीं मैम 4,95,000। 4,95,000। तो आप ये देखो कि नियरली 5 लाख में बच्चा वहां जा रहा है, राइट। पेमेंट आफ्टर वीजा है। उसको तो सबसे बड़ी बात है, फाइलिंग के भी पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं। सो आप लोग फाइलिंग के भी चार्जेस ले सकते हो उससे, और आफ्टर वीजा उसके साथ जैसे मर्जी कर, इवन आप सेल भी कर सकते हो पैकेज। अगर मैं जलंधर की मार्केट की बात करूं, 6.5 लाख से नीचे एजेंट टू एजेंट नहीं हो रहा। अगर हम बच्चे की बात करें, 7.5 लाख रुपए में वैसे बिक रहा है। हरियाणा की बात करूं, 7.5 लाख से एजेंट टू एजेंट का प्राइस चल रहा है। अगर दिल्ली की बात करूं, तो कोई भी 565 से नीचे नहीं बेच रहा, 5.5 लाख या 5.25 लाख से नीचे नहीं बेच रहा है। द थिंग्स आर देयर। और मैंने तो ट्यूशन फीसेस लेनी है, और हम जब ट्यूशन फीस चार्ज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी आर एट अ लोअर एंड। ये चीजें हैं। हम उसको 4,000 यूरो की भी फीस दे सकते हैं, 4500 की भी देते हैं। हमने टेंटेटिव लिया कि अगर हमने 4,000 यूरो ले रहे हैं तो 500 यूरो हमें फालतू हाथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो 500 यूरो बच्चे को वहां देने हैं, वो यूनिवर्सिटी को देने हैं या कॉलेज को देने हैं उसके रजिस्ट्रेशन। तो हमने वो इंक्लूड किया। अगर हम वो 500 यूरो मल्टीप्लाई कर दें, माइनस कर दें, तो 45,000 रुपये नीचे और नीचे आ जाएंगे हम ऑल टुगेदर। सो आशना मैम आपको साइप्रस कैसा लगा, कि समथिंग बेटर, जो कहीं नहीं जा सकता वो साइप्रस साइप्रस चला जाए। इजी गोइंग है। अगर कोई कह इजी रहा है गोइंग साइप्रस ना अप्रोच है। जाके हम सिंगापुर जाएं, तो वो ज्यादा बेटर नहीं? वो कहते हैं वहाँ 6 महीने में फुल टाइम काम करने को मिल रहा है, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है। अगर कोई बोलता है, हम्म। तो उसका यही जवाब है हम्म। कि हम साइप्रस से किसी भी शेनगन कंट्री में जा सकते हैं, बट सिंगापुर से हम शेनगन नहीं आ सकते, इतना ईजी नहीं है। और सिंगापुर जो हाँ जाता है, ऑब्वियसली। 1 साल की पढ़ाई पे जाता है, वो वापस आता है। सिंगापुर बहुत महंगा है, हम्म। सबसे बड़ी बात है। दैट इज ट्रू। हम्म। हम्म। ये चीजें। सुखविंदर, कोई क्वेश्चन हो साइप्रस को लेके, या कुछ ट्यूशन फीस आफ्टर वीजा को लेके, कम फीस को लेके, ऐसा कुछ है तुम्हारे दिमाग में जनरली? अगर तुम किसी को नो कॉल करोगी सर। करोगी और वो तुम्हें ना बोल देता, और वो बोलता मैडम साइप्रस तो मैं भी कर रहा हूँ आप भी कर रहे हो, तो वो क्या, हम ऐसा क्या उसको देंगे जो उसके पास नहीं है? कुछ तो होगा हमारे पास कि जो उसके पास नहीं है। सबसे बड़ी बात, उसके पास डायरेक्ट कॉलेज नहीं होता, क्योंकि जितने भी पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में काम करते हैं, वो किसी एजेंट्स के थ्रू करते हैं, राइट। और हम खुद एजुकेशन हम्म। ग्रुप हैं, हम खुद कॉलेज और यूनिवर्सिटी का पार्ट है। अगर हम ऑफर लेटर देंगे, तो अगर उसने सुबह फाइल डाली है तो शाम को मैं दे दूंगा। अगर साइप्रस हमसे 3.5 घंटे 2.5 घंटे पीछे बैठा है, तो मैं दे दूंगा आपको ऑफर लेटर इवनिंग में। मैं ये भी कर सकता हूँ कि वो हमें ये कहे कि मैडम ये मेरा 250 यूरो आपके पास पड़ा है, मैंने दे दिया, अगर मेरा ऑफर लेटर नहीं आता क्या आप मुझे पैसे वापस दे दोगे? डेफिनेटली। अगर किसी बच्चे का ऑफर लेटर नहीं आता साइप्रस में या स्पेन में या किसी भी कंट्री में जहां उसके पैसे लग रहे हैं 70 to 80%, हम उसके पैसे वापस कर देंगे। जनरली क्या होता है, यूनिवर्सिटी कहती है मेरा 100 150 यूरो दे दो, 250 यूरो दे दो, तुम्हारा ऑफर लेटर आता है नहीं आता मुझे कोई लेना देना नहीं है। हमारे साथ सुखविंदर ऐसा नहीं है, आशना मैम हमारे साथ ऐसा नहीं है, यू नो इट वेरी वेल, यू नो मी, हम्म। राइट। हम्म। सो जब हम्म। हम काम करते हैं, हम उसको ये कहते हैं अगर ऑफर लेटर आया है तो तभी तेरे पैसे ले रहे हैं। या सेकंड थिंग है कि जो हम तुझे दे रहे हैं वो एक्सक्लूसिव दे रहे हैं, या हम तो जिस चीज में दे देंगे, अगर मार्केट में कोई चीज 5.5 की चल रही है, तो हम उसे 4.5 में दे देंगे, लाख रुपए सस्ता दे देंगे, 1.5 लाख रुपए सस्ता दे देंगे, 2 लाख रुपए सस्ता दे देंगे। अगर किसी को कोई चीज 6 लाख में आ रही है, हम उसको 4.5 में दे रहे हैं, तो सुखविंदर 1.5 लाख रुपए सस्ता हो गया ना, वो 1.5 लाख रुपए सस्ता गया, राइट। यस। तो आपको भी पता है कि जो चीज किसी से डायरेक्ट मिलेगी तो वो इजी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, हम तो एम्बेसी फीस भी नहीं ले रहे। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एजेंट्स क्या करते हैं, बच्चों से एम्बेसी फीस लेते हैं, सब कोई झूठ बोलते हैं कि एम्बेसी फीस दे दो ये दे दो, वो 10-10 हज़ार रुपए अपने रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। सबसे बड़ी बात है, हम वो नहीं लेते। बीइंग अ कॉलेज हम कुछ नहीं, कॉलेज ने वो करना होता है, अप्रूवल देनी होती है वीजा के लिए। 3 महीने का वीजा आएगा, ई वीजा आएगा, या स्टैंपिंग आएगा या ई वीजा, 90% ई वीजा आता है। ये चीजें। और सुखविंदर कोई क्वेश्चन हो दिमाग में पंजाब की मेंटेलिटी को लेके? आशना मैम, आप भी पंजाब लेवल पे या हरियाणा लेवल पे सोच के देखोगे कि अगर बच्चा आता है ये एजेंट, अगर पंजाब वालों को तो सीधा सीधा ही बताना पड़ता है, उनको तो होता है कि हमें सीधा सीधा बताओ इसमें करना क्या है और हमने क्या देना है, बस दैट्स इट। मैम उनका तो यही सिंपल है। सी बात है, अगर वो अपोस्टल खुद करवा लेता है तो हमें वो पैसे ना दे,
पीसीसी मेडिकल उसने करवानी है तो उसके पैसे लगेंगे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो ऑफर लेटर के पैसे नहीं दे रहा, 150 यूरो नहीं दे रहा या 200 यूरो नहीं दे रहा, हम कहाँ से काम करेंगे? वो ये कह रहा है कि जो हमें 200 यूरो नहीं दे सकता, जो हमें 15-20 हजार रुपये नहीं दे सकता, वो कल को हमारी 4 लाख की फीस कैसे देगा, 3.5 लाख की फीस कैसे देगा, 5 लाख की फीस कैसे देगा? ट्रू है मैम, 4.5 लाख रुपए कैसे देगा वो? अगर 4,000 यूरो फीस है तो दैट इज ट्रू। अगर 4500 यूरो फीस है कैसे देगा? राइट सुखविंदर, सही बोल रहा हूँ ना मैं? हेलो सुखविंदर, इज माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू? यस सर, बीच में कट कट के आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट 15,000 रुपये कॉलेज को नहीं दे रहा, 20,000 कॉलेज को नहीं दे रहा, और वो उसके बाद वो कह रहा है कि मैं तो अम्बेसी फीस भी आपसे नहीं ले रहा हूँ, राइट? अगर जब हम उससे अम्बेसी फीस भी नहीं ले रहे, राइट, तो अम्बेसी फीस अगर 10,000 है और कॉलेज कह रहा है कि आप मुझे 20,000 दे दो, अगर मैं अम्बेसी के हिसाब से चलूँ तो 10,000 का ऑफर लेटर हो गया, 10,000 उसकी अम्बेसी फीस होगी, राइट? तो गुड टू गो है ना ये तो कोई बच्चा तो कोई इस लायक नहीं है। और तुम्हें भी पता है कि कई बार वीजा आने के बाद वो क्या करता है, बच्चा बैक स्टेप कर लेता है, एजेंट बैक स्टेप कर लेता है, राइट मैम? आश्रम में ऐसे भी होता है ना, देखा गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें तो सिक्योरिटी चाहिए, और इसकी सिक्योरिटी का ये है कि उसका पासपोर्ट एडमिशन ऑफिस के पास पड़ा होगा या कॉलेज के एडमिशन ऑफिस में पड़ा होगा, क्योंकि हमें भी गारंटी चाहिए कि जो बच्चा हमें इनिशियली कोई ट्यूशन फीस नहीं दे रहा, वो हमें फंड्स भी जो लिमिटेड से दिखा रहा है, तो वो सारी चीज़ें हैं। और इसमें कोई फंड्स भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, 7,000 यूरो चाहिए। अगर 7,000 यूरो को हम 3 महीने पुराने के हिसाब से देखते हैं तो हमारे सारे प्रोसेस को 1 महीना लग जाता है, सारे प्रोसेस को करने में। कि उसके पीसीसी को 1 महीना लगेगा, और जब तक हमने केस डालना है तो वो हमें टाइम लग जाता है ऑल टुगेदर। अभी अप्रैल का है, अप्रैल इज देयर। सो मैम 10 जनवरी लास्ट डेट है मैम, 10 जनवरी लास्ट डेट है। वैसे तो उन्होंने मुझे 15 दिसंबर का है, बट मैंने 10 जनवरी लिया हुआ है हाथ में, 10 से 15 जनवरी ठीक है। एक्सटेंडेड किया हुआ है। सो हम अगर इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेना, सो वी कैन एटलीस्ट गेट 4-5 एप्लीकेशन, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 4-5 एप्लीकेशन हम लगा लें जनवरी इनटेक के लिए, तो हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात आशना मैम, आपने देखा मेरे पास एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, मेरे पास यूनिवर्सिटी भी है, कॉलेज भी है, सारा कुछ है मेरे पास, हमारे पास। और बिल्कुल। डायरेक्ट है, और डायरेक्टर, लेट मी शेयर यू वन वंडरफुल थिंग, कि अभी तक लोग क्या करते हैं कि वो अपनी ईमेल्स नहीं दिखाते। अब मैं आपके साथ ईमेल शेयर कर रहा हूँ अपनी, ये वेब वेब सॉरी, मेरी स्क्रीन शेयर हो गई आपके साथ? यस यस यस। ओके ओके, लेट मी शेयर माय वो थिंग। मैं अपनी जीमेल शेयर कर रहा हूँ, आप देखकर हैरान हो जाओगे कैसे मुझे कॉलेज रिप्लाई करता है। वेयर दैट इज, अमेरिकन कॉलेज, अमेरिकन 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 कॉलेज, अमेरिकन कॉलेज, ओके, लेट मी गो ऑन डिफरेंट वन, इंस्टीट्यूशनल वन, अमेरिकन। ओके, यहाँ पे देखना सीडीए का आया हुआ है। सो आपने ये देखना है ये कौन से महीने की है, यूसी, यहाँ पे डायरेक्ट मेरी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बात हुई है, यू कैन सी हियर, डेट थी अगस्त, होप दिस ईमेल फाइन, मैंने सीधा भेजी है। और आगे से क्या जवाब आया, द स्टूडेंट जस्ट केम टू साइप्रस टू अनदर कॉलेज, ही कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ही कैन बी ट्रांसफर्ड आफ्टर 1 ईयर डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्रोग्राम। कहाँ से आई है? डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल अफेयर। मैम देख रहे हो आसना मैम कैसे आ रही है? जी 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 बिल्कुल। तो इवन अच्छा। सुखविंदर, आपने देखा मेरे साथ बात कौन करता है? यस सर। डायरेक्टर करता है, मैं किसी के साथ नहीं करता, मेरे साथ सीधा कॉलेज है या मैं कॉलेज के टीम का हिस्सा हूँ, राइट? ये एक हो गया, आई विल शो यू, और 31, ये तो एक था ना, आई विल शो यू, पूरी लिस्ट दिखाता हूँ, यू सी। क्योंकि लोग कहते हैं कि ये नहीं होता वो नहीं होता, मैंने बच्चे की फिर एडमिशन भी करवा दी थी, मैंने बच्चे की एडमिशन करवा दी थी, ट्रांसफर करवा दिया था। ये है अमेरिकन कॉलेज, ये देखिए कहाँ से आया, डायरेक्टर से आया मैम, डायरेक्टर से आया हुआ है। ओके, बिल्कुल। नेक्स्ट, मूव अहेड, और देखते हैं और कहाँ कहाँ से आ रहा है। ये रहा, इन्होंने शरेआम कह दिया कि यू कांट एक्सेप्ट ये चीज़ें, ये अब ये आ गया मेरी यूनिवर्सिटी के टीम का, ये देख लीजिए, यूनिवर्सिटी ऑफ निकोशिया। क्योंकि झूठ बोलना एक अलग बात होती है, लाइव एक चीज़ बोलनी, यूनिवर्सिटी ऑफ निकोशिया। अब मैं और आगे दिखाता हूँ, ये रहा, ही मस्ट कंप्लीट सेमेस्टर, वहां लिखा हुआ है सारी चीजें। वो मेरे से कैसे बात कर रही है, ये वो मेरे से पीटी का स्कोर मांग रही है 58 यूनिवर्सिटी। नाउ कम्स ये, मैंने वो कॉलेज को डब डाला था, राइट? फिर उन्होंने कहा कि 15 सितंबर के बाद मेरे से बात कर लेना, सीधा वो फिर एडमिशन टीम ने मेरे से बात की थी,
यार अब लाराना का कॉलेज आ गया, उसने मुझे क्या कहा, ऑन बिहाफ ऑफ इंटरनेशनल ये आई वुड थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट। उन्होंने कहा कि हम डिप्लोमा कोर्स नहीं कराते बट हम बैचलर दे सकते हैं बच्चे को, और बच्चा इसमें जा भी चुका है। मैंने ट्रांसफर भी करवा दिया बच्चे की डिग्री प्रोग्राम में। ये देख लो नारा लखा में, ये रहा, उन्होंने लिखा थैंक यू फॉर ईमेल, ये रहा वो पासपोर्ट प्रोसीड, ये देख रहे हो आप, 11 सितंबर को। जी। तो कहने का मतलब ये है कि लोग कहते हैं हम हमसे काम नहीं होता, और मैं यहाँ कहता हूँ भैया काम तो हो जाता है, काम करने की एटीट्यूड नहीं होता, टुवर्ड्स यू आर नॉट डूइंग सीरियसली। सुखविंदर आपने देखा कि मैंने बच्चा वहां पर था, मैंने एडमिशन करवा दी उसकी, देखा आपने कॉलेज में। यस सर। तो मेरे से डायरेक्टर की बात हो रही है, एडमिशन टीम की बात हो रही है, इट मीन्स जो कॉलेजेस मैंने आपसे बात की उनके डायरेक्टर्स में से बात करते हैं, हम एक टीम के अंदर हैं। तो हम यहाँ एजेंट वाला काम नहीं कर रहे, अगर ऑफर लेटर देना है तो भाई देना है, काम करना है तो करना है। आशना मैम आज तक आपको किसी ने ऐसे दिखाया, अपनी पर्सनल ईमेल दिखाई है आपको किसी ने, दिखाई खोल के? नहीं नहीं सर। क्यों मैम? नहीं। आशना मैम क्यों नहीं दिखाता कोई, सच्ची बताना, आप भी काम कर रहे हो और सुखविंदर भी आपके पास काम कर रही है, शी इज ऑल्सो एम्प्लॉय। तो सुखविंदर मैम आपको कभी हम्म। किसी ने दिखाया ऐसा कि मैडम ये देखो मेरी मेल से कैसे जवाब आते हैं, कैसे भेजता हूँ मैं, कैसे बच्चों को मैं ऑन श्योर करता हूँ, किया कभी नहीं आज तक, तो किसी ने वो दिखाया? इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है? मैम इनडायरेक्टर से मजा नहीं आएगा, काम करने में बहुत मजा आता है, नहीं आता पैकेज। वही ना। अच्छा सुखविंदर ये बताओ, आपने या मैडम ने एप्लीकेशन मुझे दी, उसमें फायदा है आपका कि नुकसान है सुखविंदर, प्रॉफिट है कि लॉस है? कैसे सर? अगर आपने कोई स्टूडेंट मुझे दिया या आशना मैम ने दिया, वन ऑफ द सेम थिंग है, आप लोगों ने मुझे एप्लीकेशन दे दी साइप्रस के लिए, तो आपको क्या लगता है जो मैं बोलता हूँ वो करता हूँ? सर देख के तो यस ही लग रहा है। नहीं आप मुझे ये बताओ कितने पर्सन्स हैं जो अपनी मेल आईडी दिखाते हैं आपको, कि ये देखो कि मेरी मेल आईडी है, मेल आईडी में मैंने कम्युनिकेशन की, कोई दिखा सकता है आपको? नहीं दिखाता ना ऐसे। नहीं सर। इसीलिए सुखविंदर द थिंग इज देयर, जब हम काम करते हैं हमें ये चीजें सोचनी है कि जिससे हम साथ काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट है कि नहीं। आशना मैम की बहुत बड़ी अच्छी लगी मेरी बात कि आई एम विद द डायरेक्ट पार्ट हूं उनका, या वो मेरे साथ हैं जुड़े हुए, या हम जो भी काम करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड हाँ या ना बोलेंगे। अगर उन्होंने ना बोली तो मैंने किसी और ऑप्शन में डाल दिया, मेरे पास मोर देन वन इंस्टीट्यूशन है, लोगों के पास एक बड़ी मुश्किल से होता है, बड़ी मुश्किल से एक होता है, ये चीज़ बहुत बड़ी बात होती है ऑल टुगेदर। एनीथिंग एल्स सुखविंदर तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो? आशना मैम आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा हो, आप बताओ मुझे। हाँ सर, एक मैंने पूछना था, जैसे कि कॉलिंग आप कह रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेल्स तो सबको कर देंगे। मैडम कैसे करना है मैं मेल्स। बताता हूँ, आप आपको पता है मैंने वो बुकिंग वाला किया हुआ है काम, कि मेरा एक पैनल है उसमें बुकिंग करना पड़ता है, एजेंट वहां से बुकिंग करेगा, उसको मेल चली जाएगी, हमें मेल आ जाएगी इस एजेंट को इस दिन ट्रेनिंग देनी है, तो वैसे काम चलेगा। हम्म। हमने उसको कॉलिंग करके सिर्फ हम्म। ये बोलना है कि सर ये आपकी मेल आईडी है, आप इस लिंक पे चले जाओ, आप वो कॉलिंग कर लो। 1 मिनट होल्ड करना मैम, 1 मिनट होल्ड करना, 1 मिनट होल्ड करना। हम्म। यस। हेलो। यस। हाँ सॉरी मैम, वो थोड़ा सा मुझे वो करना पड़ा था। हाँ मैं ये कह रहा था, जो हमारा काम करने का तरीका है वो बिल्कुल सिंपल होगा, हम उसको एक मेल जरूर हम्म। भेजेंगे, सुखविंदर उसको कॉल भी हम्म। करेगी, ठीक है। अब वो हम्म। कह रहा है कि मैंने ट्रेनिंग लेनी है, तो उसको बोलो सर सॉरी, हमारा ऑटोमेटेड सिस्टम है, हमारे सॉफ्टवेयर पे काम होता है, हम आपको एक लिंक भेज देते हैं, आप उस हम्म। लिंक पे पहले अपनी अवेलेबिलिटी बता देना, वैसे तो उस पर अवेलेबिलिटी होगी, अगर अवेलेबिलिटी नहीं है हम विल ट्राई। और सबसे बड़ी बात है, पहली एक मीटिंग उसको फ्री दे सकते हैं, उसके बाद जितनी भी मीटिंग होगी किसी भी हम्म। स्कूल कॉलेजेस के लिए होगी, ठीक।